हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ पॉलिटी। आई मीन कि इंडियन पॉलिटी दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड, कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टुडे discuss the whole syllabus of Indian polity, and after that we will cover all the topics one by one. And here I will not only discuss the topics, and I will also discuss the questions of that all topics related from, and like जो हम लोगों ने 50 questions in 20 minutes हम लोगों ने हिंदी में कवर अप किया है, the same things happen also happening यहाँ पर जो होने वाला है. So the thing is that ki first of all we have to understand what are the syllabus and which topic this is very important, and the most of the times the question is came in examination. That is also most important thing. So the first of all हमारा जो पहला टॉपिक था सोच का कि इंडियन पॉलिटी उठाया जाए, बिकॉज इट्स वेरी related to real life, and the problem is that ki the student is not understand that how to start a preparation of the GS, and politics related from real life and all the things surrounding it is happening, politics which is related from everybody, so that it is easy to understand. And we also must have to understand that what are the fundamental rights, what are the fundamental duties, and how it is important as compared to the survival of the fittest, a lot of things happening. So for that we have to understand the elections happening continuously in whole of the country, so that is also important thing, that we have to understand the process of election and the authority that conduct the election. These are the few important things, and because of that we have to understand and study about all these things. The election of president, election of the president, prime minister, election of CM, and the election of MLA, election of the MP, member of parliament. All these important topics that we are going to study and we are going to discuss with full description, not only in a brief, with detailing completely we will discuss here. So today first of all we have to discuss which are the topic that we are going to analyze here in after few days, and after that I will start history in English medium, and then by when we complete the whole syllabus of history, then we will start a new subject like economics, like geography, and that we will decide after that which we have to take and start the preparation. So first of all, in Indian polity there is a three classification of this one. One is basic, second is pillars, and the third is factual portions, that we have a criteria. So what comes under the basic, and which topic comes under the basic, and we have to understand. So first of all I am just going to write few topics, and that will be study under this Indian politics, and this is the most important and fundamental part of the Indian constitution. Clear? What is Indian constitution? When we start a topic, and we will take a first of all we start with the basics. So when we discussing about the basics, the starting will come out with a fundamental, and 3 or 4 classes will be about a whole fundamental and how to start a preparation in Indian polity, that will understand by when you have seen all these 3 or 4 video, and then after that we will start with a concept. Okay, so don't worry about that. It may be problematic that if you have a learner, that you have to understand all of the topics and how you will cover all the syllabus. And I'll try to provide all the information in a PDF form, that notes I'll try to provide a notes like that we will discuss later. But first of all we have to discuss the first topic, that for example FR. This is come under the basic. What is FR? That is called fundamental right. How many fundamental right has been given under the in our country constitution, and in which article this is came, which article is most important, and why it is important for the citizen of India, and a lot of articles which is given only for the citizen of India, that also we will discuss here. That means I will cover all the informative things that may be important as point of exam point of view. So that's the thing about the fundamental right. Second thing, आई थिंक आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश में कंफर्टेबल है. पहला वीडियो है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि द होल क्लास विल बी इन इंग्लिश इज बेटर, और कि हम लोग हिंदी में बात भी करते चले और साथ ही साथ आपका इंग्लिश में हम लोग आपका पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कंफर्टेबल इसमें पढ़ाएंगे पूरा का पूरा इंग्लिश में, हिंदी में आप लोग कंफर्टेबल हो सुनने में, कि आप लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो. बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी बोथ. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो आप लोग डिसाइड करिएगा कैसा क्या है. तो चलिए पहला कंडीशन हमारा क्या है, एफआर. लेकिन मुझे अभी पता नहीं ना कि आप लोग कंफर्टेबल किस में हो, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं सिलेबस को इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूं. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब इंग्लिश का सिलेबस लेके आ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ाने आ रहे हो, तो हिंदी में क्या बोल रहे हो. बहुत सारे ऐसे लोग भी कमेंट कर देते हैं.
ये बहुत सारे ऐसे भी होते हैं यार, इंग्लिश में पढ़ा तो रहे लेकिन ठीक है यार हिंदी में तो बोल लो, इंडिया के रहने वाले हो, तो लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग. एफआर इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सेकंड इज कॉल्ड एफडी. दिस इज नॉट कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम लोग भूल जाते हैं लेकिन हमें फंडामेंटल राइट याद रहता है. सो वी हैव टू कवर फंडामेंटल ड्यूटीज. अपार्ट फ्रॉम दिस, DPSP, Directive Principle of State Policy, which is also important. And in every exams, one question is necessary come out from the DPSP. निश्चित है कि ये क्वेश्चन DPSP से आने ही आने वाला कंडीशन है, हमेशा बनता ही बनता है. So we have to cover out this topic. Next condition 4, अगर हम बात करें इसके बाद हमारा क्या है, preamble is also comes under this basic. Preamble is comes under the basic, very important. It is not only factual, it's a very conceptual chapter. What is the use of preamble? I'll discuss when we start a topic of preamble. But the thing is that whenever the Supreme Court is going to give the verdict and they have some dilemma on that situation, what happened in that situation? They look at the preamble, they look toward the preamble, and by using the concept, by using the soul of preamble, they give the verdict. I'll discuss on that preamble, what is the meaning of preamble and everything, all the important facts that come under the preamble. And next part is that fifth, after the preamble, formation of constitution is also come under the basic. Formation of constitution is also come under the formation of constitution. एंड जो लोग भी इंग्लिश मीडियम के हैं, प्लीज शेयर टू देम, उनको शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ना इंग्लिश मीडियम की वजह से जीएस में उन्हें लोकल में प्रॉब्लम होती है. बहुत सारी कंडीशन होती है इनको कि रीजनल लेवल पे अपने क्षेत्र में इनको इंग्लिश मीडियम की जीएस मिल नहीं पाती है. अगर इंग्लिश के यूट्यूब में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम का हायर ऑर्डर का पड़ा हुआ है, मतलब एक लेवल का एग्जाम का है. तो एसएससी सीजीएल इस लेवल में हमें क्या होती प्रॉब्लम होती है ऐसा इंग्लिश मीडियम का मिलने का. तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा टू कवर अप ऑल दिस प्रॉब्लम्स, लेकिन आपको बस शेयर करना है, दैट्स द थिंग्स. सर अगला टॉपिक हमारा क्या है, 6 नंबर. अगर हम बात करें इसी का टॉपिक में, 6 नंबर प्रॉब्लम टॉपिक क्या है सर आपका, बेसिक आपके हो जाएंगे. इसके साथ ही साथ दे हैव आल्सो वेरी फेमस एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए एंड जिसको हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, एग्जाम में पढ़ते नहीं है. बैकग्राउंड हिस्ट्री, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड. ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो आ जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है सर, बैकग्राउंड हिस्ट्रीशन, व्हाई इट बिकम इंपॉर्टेंट, और इसकी जो फाउंडेशन है न्यू है, व्हाट इज दिस मीन दैट ऑल द एक्ट्स, जितने भी चार्टर एक्ट आए हुए हैं, जितने भी एक्ट पास किए गए पार्लियामेंट, ब्रिटेन पार्लियामेंट के, दिस दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई विल कवर ऑल दैट एक्ट. तो यहां पर हम यहां बात करेंगे चार्टर एक्ट में लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आप लोग चार्टर एक्ट अक्सर सुनते रहते हैं, चार्टर एक्ट. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट आपके जो आपके पढ़ते हैं आपके इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना है. नॉट ओनली दिस वन इज ओनली द बेसिक, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बेसिक तो कुछ भी हो सकता है ना. बेसिक का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन, जिसे हम बोलते हैं ना फाउंडेशन है, इट इज अ फंडामेंटल. फंडामेंटल क्या, मौलिक है, आधार है ये, दैट इज कॉल्ड बेसिक. ओके, कम टू द सेकंड पार्ट, पिलर्स. वी नो दैट देयर इज अ 3 बेसिक fundamental pillar has been given in a constitution, but at the present time there is a 4 pillar in the constitution. There is a 3 fundamental basic pillars. One is called, and you have to understand all these things, we will discuss here. Legislative, I'll written here LEG, legislative, executive, EXE, and judiciary. These are the 3 pillars. These are the fundamental pillars. But apart from that, one is part of media. This is also a 4th pillar of our Indian Constitution, and it's become very, very important at the right now, at the right time. Why it is important? Because it is become a medium to connect from legislative, from executive, from judiciary to the people. यही तो हमें जोड़ रहा है ना, लोगों को सरकार तक आवाज, सरकार की लोगों तक आवाज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है सर, मीडिया कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गिवन अ पर्टिकुलर फॉर्म दैट इज कॉल्ड 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? ओके, अब हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है सर, ये भी तो पता होना चाहिए सर, पढ़ना क्या है. अ लॉट ऑफ टॉपिक्स हैज कम अंडर दिस. वन इज कॉल्ड आपका प्रेसिडेंट, दिस इज कम अंडर दिस वन, प्रेसिडेंट.
प्रेसिडेंट, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर स्पेलिंग की। और इंग्लिश की स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाती है तो डोंट वरी, मैं कई बार हो जाता है मुझसे मिस्टेक, तो उसको कोई इतना माइंड नहीं करना है, ठीक है। और चलता है, आप लोग बता भी देना कमेंट भैया कि ये गलत लिख दिया, इसको ये नीचे इसको सुधार लो, तो नेक्स्ट टाइम सुधारने का प्रयास करेंगे। बट आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, डोंट गो ऑन अ स्पेलिंग बिकॉज इट मे बी हैपन, होगा, मिस्टेक्स होती है मुझसे, तो बट आई ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑन दैट, ओके, डोंट वरी। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट अगर हम बात करें, यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM लिख दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट इज ऑल्सो कम ऑन दिस वन, पार्लियामेंट, बिकॉज फ्यू फैक्ट्स आर ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम पार्लियामेंट, तो वहां पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट आपकी कंडीशन को लेते हुए अगर हम बात करते हैं, अगला कंडीशन हमारा आता है सर, ये तो स्टेट लेवल की बात हमने कर लिया, अटॉर्नी जनरल, दिस आर द स्मॉल टॉपिक्स, वेरी स्मॉल टॉपिक दैट विल आई टेक आफ्टर व्हेन द होल सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। सो अब कंडीशन क्या आता है सर, अगला स्टेट में आ जाते हैं सर। स्टेट में अगर मिलते हैं तो गवर्नर, गवर्नर, राज्यपाल जिसको बोलते हैं। अगली कंडीशन सर आएगी आपकी CM। अगली कंडीशन आएगी सर यहाँ पर स्टेट में सिलेबस है सर, आपको पॉइंट भी रखना है याद, क्या क्या हमें पढ़ना होता है सर। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम लोग और डिस्कस करते हुए चलेंगे यहाँ पर, जो आपके पिलर्स में है यहाँ पर सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। और जो टॉपिक होंगे जैसे आपका बहुत सारा ग्राम पंचायत और डिसेंट्रलाइजेशन के तहत जो भी चीजें आएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात कर लेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में बात कर लेंगे, दैट विल कवर्ड हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है ना। दीज आर द सिलेबस। इसके बाद क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें फैक्चुअल आपकी होती हैं, तो उनको भी हमें कवर अप करते हुए चलना है। अच्छा, इसमें क्या ना, ये एग्जीक्यूटिव इसका पास कर लिया ना, जुडिशरी भी जो है ना, जुडिशरी में क्या क्या आएगा आपका, उसको भी देख लेते हैं सर। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली हम इसको कवर अप करेंगे एंड देन विल गो, जो भी ऑर्डिनेंस कोर्ट आपके होंगे वहां पर बात करेंगे, जिला न्यायालय वगैरह की थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे एग्जाम पर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द क्वेश्चन विल कम आउट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। व्हेन वी कवर्ड ऑल दिस टॉपिक, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसके बाद किसी प्रकार की। क्लियर भैया। इसके बाद क्या बचता है सर, फैक्चुअल पोर्शन में आते हैं सर। फैक्चुअल पोर्शन में क्या है, फ्यू इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वो कुछ एग्जाम में तो आने होने भैया, तो आपको पता है कौन कौन से आने चाहिए, ये पता होना चाहिए सर, और उनको वैसे याद होने चाहिए सर। अच्छा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके होंगे उनको मैं इन टॉपिक्स के साथ कवर अप करता हुआ चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मजे के साथ पढ़ाई करनी है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है। क्यों पढ़ाई करनी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई से ही आपकी समझ डेवलप होती है। योर अंडरस्टैंडिंग विल क्रिएट फ्रॉम व्हाट, किससे होगी सर, बिकॉज ऑफ रीडिंग, और आप रीडिंग नहीं करते हो इसलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। इसलिए न्यूज पेपर पढ़ने की हैबिट डालो, जरूरी न्यूज पेपर पढ़ो, और बहुत सारी चीजें, आर्टिकल्स पढ़ो, कोई भी इंग्लिश कोटेशन पढ़ते हो उसको मतलब पता करो क्या होता है, टी शर्ट में किसी का नाम कुछ लिखा पता करो, ट्रक में कुछ लिखा है पीछे पता करो क्या होता है, ठीक है। एवरीथिंग, जहां भी आपको कुछ मिले, मतलब आप जाते हो मार्केट में, कम से कम नहीं तो आप सैकड़ों ऐड देखते हो, पोस्टर लगे होते हैं, उनको एनालाइज करो, उनकी फोटो को समझो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है, यही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा, और कौन डेवलप करेगा सर। क्लियर, ओके। बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बाद क्या है सर, पार्ट्स, दिस इज कॉल्ड फैक्चुअल पोर्शन में आता है पार्ट्स। क्लियर। इसके बाद सर क्या है आपका थर्ड कंडीशन, शेड्यूल। ये सब तो रट्टा मारना है ना भैया, मतलब वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, दबा के पढ़ाई करनी है। और नए हैं जो सब आपके चैनल में, चैनल को दबा दो, मतलब दबा दो तो लाल बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। और जो भी इंग्लिश मीडियम के आपके दोस्त उनको शेयर मार दो, पहुंचा दो वीडियो, सिलेबस तो मिल ही जाए, कम से कम इच्छा उनकी होगी पढ़ने की, पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ना चाहेंगे। चलिए, तो इतनी अगर हम कवर अप करते हुए आगे चल रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीजें हो जाती। अब इतने ही टॉपिक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा सब कुछ बता दिया मैंने, टॉपिक्स सभी हैं, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं, सीबीआई के बारे में भी आप चाहे पढ़ सकते हैं, आरटीआई के बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं,
सीबीसी के बारे में पर्सन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक है ना, मानवाधिकार भी तो बैठा है, ह्यूमन राइट भी तो बैठा है, उसको भी तो पढ़ेंगे हम लोग, सारी कंडीशन पढ़ेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। तो आप भी शुरू कर दीजिए जंग को, बिकॉज पढ़ाई हो, वो कहता नहीं है कि इसको हो या जंग हो, भरपूर होना चाहिए, वो कहावत है एक। तो सर लग जाइए सर, पढ़ाई एक जंग है सर, उसको जंग बना दो और तब तक पढ़ते रहो, तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको नींद ना जाए। ऐसे सो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि नींद ही नहीं आती उनको। अरे भाई साहब, अपने शरीर को इतना इतना थका दो कि आप बेड में गिरो नहीं कि आपको नींद आ जाए सर। आपको ऐसे पढ़ना है, मतलब आपके सामने ऐसा नहीं किताब बस खुली रखी, नहीं, आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ना है सर, जागते हुए पढ़ना है। किताब खुली रहने का मतलब पता ही नहीं होता पढ़ाई का। पेरेंट्स आपके आते हैं, आपकी किताब खुल जाती है, सब पेरेंट्स भी जानते हैं कि अभी खोला है, और जाते ही बंद हो जाती है, फिर मोबाइल बीच में रखा होता चालू हो जाता है। ये नहीं करना है। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन वो सॉलिड पढ़ो। 1 घंटे पढ़ो, फिर आपको ये महसूस हो कि हमने कुछ पढ़ाई की है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ो 1 घंटे, तो फिर सॉलिड पढ़ो, फिर आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सही गलत कुछ होता नहीं दुनिया में, समय के पहले और समय के बाद की गई चीजें गलत होती है, और समय पर की गई चीज कोई भी गलत नहीं होती है, ये याद रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंड उस टॉपिक के साथ हम लोग इंडियन पॉलिटी को शुरू करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।